Hey guys, welcome on our YouTube channel on English Learners. This is Madhuri Chaurasia in front of you, and this video is not related English language. I want to share with all of you my personal thoughts, what I am feeling nowadays, and I'll also share with all of you two Pankati of Sant Kabir ji. I want to share with all of you, if you are in the journey of learning English language and somewhere you are feeling demotivated or you are feeling like you should give up, you can't continue this journey or like this kind of things, then definitely watch this video. I'll also share with all of you my past related this language and my present as well, like how I improved and how you can improve from scratch if you want to learn so many things. This video can definitely help you um, to get rid of feeling like this kind of things. I can't say that I'll help you in that way, like after watching this video you are going to learn this language, nothing like this. Basically in this video you are going to get some impetus. Okay, so if you have started learning this language or just you want to learn but कुछ दिनों के बाद आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और लगता है that this is not your type, you can't do it like this kind of things, then definitely watch this video. Let me share with all of you one pankti of Sant Kabir ji. Definitely listen his pankti. If you can understand his meaning in deep, you're definitely going to feel motivated or something like this. Okay, let me first of all share with all of you. I hope that you know. करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान. Okay, again let me repeat this. करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान. मीन्स दैट इसकी तो अलग मीनिंग होती है, खैर उसकी जो भी मीनिंग होती है, इसका बेसिकली आप ये मतलब समझ सकते हैं जिस तरह से पानी निकालते निकालते उस पत्थर पे निशान पड़ जाती है. कुएं के पत्थर जो होती है ना, शुरू में बनती है, एज वी नो दैट वो बहुत ही फिनिश होती है एकदम परफेक्ट शेप में, पर रोज़ पानी निकालते निकालते ना वहाँ निशान पड़ जाती है. इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रिंग, रोप, वो जो रस्सी है, रोप, बड़े जो मोटे रस्सी होते हैं उसको रस्सा कहते हैं, दैट इज़ रोप इन इंग्लिश. एंड जो पतली होती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, तो रोप होता है. वो रोप की वजह से पूरा पत्थर एकदम निशान पूरा एकदम निशान पड़ जाता है, खड्डा हो जाता है, लाइक दिस. सेम उससे सीखने को हम लोग ले सकते हैं या सीख सकते हैं कि अगर वो पत्थर को चीर देता है, निशान दे देता है, तो फिर हम लोगों में क्या ऐसा कमी है? अगर कुछ भी नहीं आती है, बस अगर रीडिंग आती है, ओनली यू नो हाउ टू रीड बुक्स, लाइक सिंपल वर्ड्स, येट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी. बहुत सिंपल ये जर्नी, बहुत सिंपल है, बट येस यू हैव टू yeah, so you have to be always in the environment of learning this language. मैं बेसिकली बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप बहुत ही डम है, मतलब बहुत ही डम मतलब एकदम डल बच्चा है, ठीक है, एकदम डम है, आपको नहीं आती, कुछ भी नहीं पता है कैसे सीखा जाता है, एकदम आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यू कैन लर्न. ओके, बिलीव मी, यू कैन लर्न. इफ़ आई कैन, यू कैन. If you don't believe on me, then definitely go and search on YouTube, just Madhuri Chaurasia. You're going to get new channel. There I have wore blue and red t-shirt like this. लोगो ऐसा एक वॉच है, रिस्ट वॉच है, ऐसा मैंने पहना हुआ है, वो मेरी चैनल है. आप जाइए और उसका वीडियोस देखिए. I am not running that, I am not using that account right now because I don't have ID and password, so I can't get that
आइडिया अगेन। तो आप जाइए और उस वीडियोस में देखिए, उसके वीडियोस देखिए, बिफोर 2 years हाउ आई वाज 2 years ago. You can get impetus definitely, बट सीखने की ललक होनी चाहिए। ओके, बेसिकली इस पंक्ति से इतना सीखने को मिलता है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा हमेशा सीखना है। nobody is perfect, okay, nobody is perfect here, nobody can be perfect, okay। जितना जो मेहनत करेगा, जितना जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो उतना ही परफेक्ट बनेगा। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नेवर थिंक लाइक दैट यू आर गोइंग टू स्पीक only when you get perfection, or only when you speak like this or that, like them, or like उसके जैसा, उसके जैसी, ऐसा कुछ। no, enjoy your process, okay, and learn it in fun way। don't get burdened, and don't set limit any kind of that I'm going to learn this language within 6 months or 5 months or 1 month, nothing like that। believe me, if you have decided to learn this language, or if you want to achieve any kind of label, like if you want to speak like me, it will take like 1, 2 and 3 years। it's totally up to you how much you practice and how you're practicing, okay। सही डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सीख जाइएगा, नहीं तो फिर इधर हाथ पैर उधर मारिए और फिर करिए। ओके, सेकेंड पंक्ति है। ये भी लगता है शायद संत कबीर जी की है, बहुत अच्छी है ये भी। ओके, तो ये है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। लग सकता है बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी डीप मीनिंग समझिएगा तो बहुत 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 कारीगर है, मतलब पावरफुल है। इसमें बहुत समझ जो जाएगा ना, उसको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी काम को करने में। इसका मतलब होता है धीरे धीरे सब कुछ होती है, जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ होती है, और जो चीज़ होना रहता है ना, वो होता है, उसी समय पे होती है। कहा भी जाता है शायद पता नहीं, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं मिलती है। ये उनके लिए सही है जो बहुत मेहनत की है उस चीज़ को अचीव करने में, और फिर लगता है कि चलो ठीक है। ये उनके लिए, ये नहीं कि आलसियों के लिए, सोए हुए और सपने देख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस पंक्ति का क्या मतलब होता है पता है? धीरे धीरे सब कुछ हो जाती है, भले ही माली कितना भी पानी सींच ले, कितना भी सेवा कर ले, फल तभी या फूल तभी लगेगी उसमें जब सही ऋतु आएगी। पर मैं, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, अगर वो माली सींचे ही ना, सिंचाई ना करे या फिर सेवा ना करे, तो पौधा ही नहीं रहेगा, मुरझा जाएगा। तो इससे ये बिल्कुल भी मत सीखिएगा कि तभी आप मेहनत कीजिएगा या फिर तभी आप खुद ही सीख जाइएगा बिना मेहनत किए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा। जिस तरह से मालिक सेवा करता है वो अलग बात है, सीजन आती है तब उसमें लगती है फूल। तो अब ये मत सोचिएगा अपना टाइम आएगा तब बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं, अपना टाइम आता है, ठीक है। लाना पड़ता है अपने टाइम को, मेहनत करके कंटिन्यूटी में रहकर उसको लाना पड़ता है। ओके, मैं आप सबके साथ हूँ, ठीक है। मैं भी अभी जर्नी में हूँ, सीख रही हूँ। और जर्नी में क्या, मैं तो हमेशा मरते दम तक जर्नी में रहने वाली हूँ। हाँ, अभी पर थोड़ा सा ठीक हूँ। तो बेसिकली इतना बस समझिए। और देखिए, अगर आपको सीखना है ना, सिंपली अगर सीखना है एकदम ईजिली, तो मैं बता दूँ, अगर आप कुछ नहीं जानते तो टाइम एंड टेंसेस से स्टार्ट कीजिए। पर उससे पहले वर्ब्स की फॉर्म रिमेंबर कीजिए, डेली यूज़ वर्ड्स रिमेंबर कीजिए, और फिर टाइम एंड टेंसेस सबसे पहले ये वाला काम कीजिए। इसमें एकदम सही से इसका सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिए। Even I am teaching time and tenses nowadays. You can watch all videos. Go and check out spoken English videos. You are going to get there, okay? और फिर मॉडल सीखिए, WH फैमिली को थोड़ा सा यूज़ करना सीखिए, और फिर सेंटेंसेस ऐसे घुमा के बनाना स्टार्ट कीजिए। फॉर प्रैक्टिस, इफ़ यू वांट टू practice where you can practice, then you can use ACE Fluency application,
You can get their partner and you can use 30 minutes free of cost with a person. आप उनसे बातें कीजिए, खुद से बातें कीजिए, और 24 आवर्स सबसे पहले इन्वायरमेंट में रहिए। इन्वायरमेंट नहीं कोई बनाएगा, खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके, दिमाग में हमेशा सोचते रहना इंग्लिश में, हमेशा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। डायरेक्ट आप नहीं आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश को, नहीं, पर हाँ ये हमेशा सोचते रहिएगा कि इस सेंटेंस को मैं कैसे इंग्लिश में बना सकती हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है। एग्जैक्ट एकदम लोकेशन पे आप उस सेंटेंस को सर्च कीजिए गूगल ट्रांसलेट पे। गूगल ट्रांसलेट एक दिस इज़ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, आप इसे यूज़ कीजिए और हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखिए एंड स्पीक दैट सेंटेंस लाउडली। रीड बुक्स, अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पे है। यू कैन वॉच माई वीडियोज़, यू नो, I have made a playlist of my personal suggestions to fresher English learners. Definitely go and check out that playlist. आप उसकी वीडियोस देखिए। मैंने सब इसी पे सिर्फ बनाया कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो हेल्पफुल रहेगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप टीनेज से अभी बाहर निकल रहे हैं, मीन्स दैट अगर आप 13 से 19 साल की उम्र में हैं या 19 से भी क्रॉस करने वाले हैं, तो हम लोगों के ना ऐसे अंदर चुल उठी रहती है कोई भी चीज़ फटाक से ले लेने का। मीन्स दैट कुछ भी चीज़ एकदम जल्दी से मिल जाए। रिमेंबर गाइज, दिस इज़ अ लैंग्वेज, ओके। और हमेशा कीप पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखिए। जितना लंबा टिकेंगे ना उतना ही आप मतलब एकदम कह सकते हो ना एकदम मस्त एकदम उस फील्ड में बनिएगा। इसलिए धैर्य रखिए और काम करते रहिए। डीमोटिवेशन कोई नाम ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। होती है भाई, मैं नहीं कह सकती, होती है, चीज़ होती है। मैं भी फील करती हूँ, पर कुछ नहीं, काम तो करना होगा ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं, काम तो करना होगा। सो enjoy this process and learn it in fun way. If I can, you can. इतना याद रखिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो ऐसे ही कर लीजिएगा। मेरी जैसी लड़की कर सकती है तो फिर तो हर कोई कर सकता है, आई थिंक। सो दिस वर ऑल गाइज। If you feel that this video can help you anyhow, or if you got any kind of motivation, impetus, then definitely share with your friends, or yeah, definitely in your groups as well. You can follow me on Instagram and Facebook as well. On Telegram as well, you can follow me there because I'm also active there. If you have any kind of qualms, problems, bottleneck, or questions related to this language, feel free to ask your questions in comment box, or if you are available, if you are active on Insta, definitely follow me there. Okay, bye. Thank you for all things. Okay. Thank you.